Welcome to Shikshaism. Today we'll discuss the chemical properties of alkenes. आज का टॉपिक हमारा है alkenes के chemical properties. We know that alkenes are unsaturated hydrocarbon having carbon-carbon double bond. Because of this unsaturation and because of the pi electron present in the double bond, ये pi electrons जो है वो weakly held होते हैं in a double bond और pi bond के weak nature की वजह से वो easily break हो सकता है. सो जनरली alkenes जो है वो एडिशन रिएक्शंस प्रोवाइड करते हैं. अबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है वो ससेप्टेबल बना देती है alkenes को टू रिसीव द इलेक्ट्रोफाइल्स. alkenes जो है इलेक्ट्रोफाइल्स को रिसीव करेंगे. इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज स्पीसीज व्हिच आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन. दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन की सर्च में होंगे वो alkenes पर अटैक करेंगे और इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की कोशिश करेंगे alkenes में से. और इसीलिए alkenes जो है वो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं. इसके अलावा alkenes के बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शंस भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे हमारे ये सेशंस के अंदर. तो पहले एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हेलोजन का डिस्कशन वहां से हम शुरुआत करेंगे. alkenes में जैसे हमने देखा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड alkenes अंडरगो एडिशन रिएक्शन. alkenes जो है वो एडिशन रिएक्शंस देते हैं. alkenes के एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन. हम ऑलरेडी alkene के एडिशन रिएक्शन देख चुके हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ alkanes, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं कि एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे आप लिख सकते हैं. अगर मुझे alkenes के एडिशन रिएक्शन मेंशन करने हैं, सपोज इथीन आई एम टेकिंग इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ platinum palladium catalyst. We can use nickel as a catalyst, but along with the nickel we need a high temperature and pressure. Hydrogen added to the carbon by breaking this pi bond. ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो pi bond होगा वो weakly held होता है, वो break हो जाएगा. And both the carbon receives one hydrogen, so they will change to CH3 single bond CH3. In this way, alkane is obtained from alkene. ये हम पढ़ चुके हैं as a method for the preparation of alkane, but here it is as a chemical property of alkenes. Alkenes undergoing addition of hydrogen reaction, मतलब dihydrogen gets added to alkene by breaking the pi bond. कोई भी alkene ले सकते हो बच्चे लोग. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में प्रोपीन ले रहा हूँ. प्रोपीन का एडिशन रिएक्शन ले रहे हैं विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट हीटिंग. You can use platinum or a palladium as a catalyst and will get a propane as a product. एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर. So basically it's called हाइड्रोजन का एडिशन फॉर alkene. जो हमारा दूसरा रिएक्शन है यही कैटेगरी में, इट इज एडिशन ऑफ हेलोजन. Halogen like bromine or chlorine add up to the alkene to form a vicinal dihalide. What is the meaning of vicinal dihalide? We have already discussed vicinal dihalide. A dihalide in which two halogens are present on the adjacent carbon atom is called vicinal dihalide. For example, मैं यहाँ पर ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ with CH2 double bond CH2 ethene ले रहा हूँ. Ethene reacting with chlorine or bromine. What happens? One chlorine over here, one chlorine over here. By breaking the pi bond, both the carbon will receive one chlorine each. And they will change to CH2Cl, CH2Cl. 1,2 dichloroethane is obtained by this reaction. 1,2 dichloroethane is obtained. तो ये था एडिशन रिएक्शन ऑफ हेलोजन. हेलोजन लाइक ब्रोमीन और क्लोरीन they gets add up to the alkene to form vicinal dihalide. अगर मैं प्रोपीन ले रहा हूँ, एक और एग्जांपल कंडक्ट कर रहे थे, प्रोपीन ले रहे हैं और प्रोपीन का ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ मैं. What happens? ब्रोमीन will be received by both the carbon. दोनों कार्बन एक एक ब्रोमीन को रिसीव करेंगे. And again vicinal dihalide का फॉर्मेशन होगा. Vicinal dihalide is obtained. However, iodine does not show addition reaction under normal condition. Normal condition में iodine ये addition reaction देता नहीं है. ये थे दो एग्जांपल जो हमने इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर. अब हम थियरी के बाकी के टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं. भाई ऐसा लिखा है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन आयोडीन ये रिएक्शन देता नहीं है, लेकिन हमने जो ब्रोमिनेशन रिएक्शन लिखा, ब्रोमिनेशन ऑफ इथीन, जैसे हमने इथीन के अंदर ब्रोमीन ऐड किया, दिस रिएक्शन रिक्वायर्स अ कैटलिस्ट कॉल्ड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में जब हम इथीन का ब्रोमिनेशन करते हैं हमको विसिनल डाइहैलाइड बनेगा. विसिनल डाइहैलाइड मतलब दोनों कार्बन एक एक ब्रोमीन को रिसीव कर लेंगे.
लेकिन ये रिएक्शन की स्पेशलिटी ये है, दिस इज आल्सो नोन एज अनसैचुरेशन टेस्ट। ब्रोमीन का जो ब्राउनिश कलर होता है, जो ऑरेंज रेडिश कलर है ब्रोमीन का, रेडिश ऑरेंज, ये डिसअपियर हो जाता है, इट गेट्स डिस्चार्ज्ड। Discharging of bromine's orange reddish color indicates the unsaturation of a compound, मतलब वो कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अगर आपको कोई अननोन कंपाउंड दे दिया जाता है और आपको चेक करना है वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब वो अल्केन को बिलोंग करता है या अल्कीन्स या अल्काइंस को बिलोंग करता है, आप ब्रोमीन टेस्ट कर सकते हो। कंपाउंड को ब्रोमीन के साथ मिक्स किया जाए, if it decolorizes the bromine water, you can say that the given compound is belong to the category called alkenes or alkynes। और अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अगर वो उसको डिसअपियर नहीं कर रहा है तो मे बी वो हाइड्रोकार्बन अगर होगा तो वो अल्केन कैटेगरी का हो सकता है। अल्केन्स जो है वो ब्रोमीन को डीकलराइज नहीं करेगा, बट अल्कीन्स एंड अल्काइंस जो है दे डीकलराइजेस द ब्रोमीन वाटर। यहाँ पर वही लिखा है, लेट्स सी द रेडिश ऑरेंज color of bromine solution in a carbon tetrachloride is discharged मतलब उसका कलर रिमूव हो जाएगा when bromine add to the unsaturated side मतलब having carbon carbon double bond। this reaction is used as a test of unsaturation, as I mentioned this reaction is used as a unsaturation test। addition of halogen to alkene is an example of electrophilic addition। जैसे मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो हमेशा इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इजीली कहाँ अवेलेबल है, ये लूजली हेल्डेड पाई बॉन्ड में, और इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ आएंगे और ये जो रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन लविंग साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। हेलोनियम क्या है वो हमारी प्रॉब्लम अभी नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में आपको खाली प्रॉपर्टी जो है उसके तौर पर इसको डिस्कस करना है। इट्स एडिशन रिएक्शन ऑफ हेलोजन। दो सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, इथीन का ब्रोमिनेशन किया है और प्रोपीन का क्लोरीनेशन किया है। इन शॉर्ट एज अ केमिकल प्रॉपर्टी विल गेट अ विसिनल डाइहैलाइड बाय एडिशन ऑफ हेलोजन विद अल्कीन्स। अल्कीन्स जो है हेलोजन के साथ विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो रिएक्शन है, जल्दी से आप कॉपी कर सकते हो। देन विल मूव forward for the third property which is called addition of a hydrogen halide। ये addition of hydrogen halide जो है बहुत important concept है because it includes two important mechanism, Markovnikov and anti-Markovnikov rule। Stay tuned for that।